RVG, and he is currently working as an assistant professor of Delhi University, Ramjas College, where he is known for guiding and inspiring students with knowledge, values, and critical thinking. He completed his bachelor's degree in humanities with distinction from Nagpur University and was actively involved as a speaker and writer during his student life. His efforts go beyond teaching. He successfully organized Grand Dr. APJ Abdul Kalam Memorial Lecture, which reached more than 70,000 students. Showing his passion and commitment, he also promotes Indian language and literature, especially through the All India Marathi Literary Fest. Dr. RVG is respected for his expertise in research, offering deep academic insight to students. He is currently the head of the history department at Ramdas College and the member of NCRT as well. And along with it, as we all know, that every lecture of Dakshi starts with Saraswati Vandana. So I would like to call Bhupendraji for Saraswati Vandana. आवाज आ रही मेरी? जी आप ऑडिबल हैं. या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा. Thank you, Bhupendraji. And now I would like to call our Prashant sir to enhance our knowledge and to guide us. Good evening, everyone, Good evening, sir. and I'm very happy to be here as the invited speaker for Dakshi. When I heard first time about Dakshi, it was I thought personally that when students and the youth, especially youth, when come together and decide something constructive, the Dakshi can be the result. A student who rose out of the entire discourse, the narratives going on in the university, and he decided to do something on concrete level. Okay, not only through speeches, but he did something concrete, and the answer before us. First of all, I congratulate you all guys, those are working for Dakshi. If I come to my topic, the topic is how to implement the Indian way of thinking in research paper writing. This is the topic. Now the point is, so many thoughts and so many dimensions are going on in my mind. From where should I start? This is a big question for me. Now the point is, as far as this implementation of Indian way of thinking in research, very recently I was in a committee. I'm not I have been told not to disclose where I was working, but when I was working, I must share that experience with you all guys. And when it came to adding the reference list or reading list just below the some curriculum, particularly some syllabus kind of thing, where I have been told and I was searching, and specifically those have been distorted the thing, because in our history, instead of history we used to say it is history, because most of the thing have been distorted, you know all guys. But always just commenting the history has been distorted, despite of saying that it's our duty, it's duty of youngsters what we can do better, instead of just cursing TB Macaulay.
one very senior fellow is there. Just I complete the first example, that when I was searching for some reading list, those were intentionally pushed out of the shelf of the academia. So I just saw there were thousands and thousands books, but those were published, the rigorous serious work done in 70s, 1970s. It means in last 50 years, what my generation did, my generation just cursed Macaulay, cursed James Mill, cursed William Wilberforce, but instead of that, we didn't create any a concrete thing for the coming generation. And when I was searching for the books, those were in 1960s and 70s. Vishwambar Prasad Pathak, I have to find a great scholar, Sitaram Goyal, Vishwambar Prasad Pathak. But when it comes to our time, contemporary time, shall I put or shall I add J. Deepak Sai in academia? It's a big question for me. I can't. When some books were suggested, I bluntly refuse that this book cannot be used as a reference list. But the point is, now when it comes to our time, now it's our duty, and especially Dakshi, the member of Dakshi, should think very seriously on this issue. Youngsters, just cursing is not the solution. My very senior teacher is there, he is 85-year-old. Okay. And he's just still like a friend to me, though he's 85, 86. He once asked me a question, and that question shattered me. Whenever I think I just put you before this, his question just put you before. He asked me, always all we nationalists or especially Hindutvites, those love their nation, always ask one common question that TB Macaulay, Thomas Babington Macaulay has distorted everything. He established his education system in 1835, Macaulay's Minute, that we know well. And after Macaulay's Minute, the entire education system was grabbed under the colonial influence, and we can see the result. And this today is the result of TB Macaulay's 1835 Minutes of the Macaulay. This is our claim. This is our argument. Okay. But the point is, my teacher asked me, Prashant, you just tell me, in 1835, he implemented his education system. After 1947, you just mention one single academician, okay, educationist, who told us, like TB Macaulay. TB Macaulay said, yes, I'm implementing this policy, this education system, and after 50, 70 years, the person who learned through this, who gone through this education system, he will be black in nature, he will be black in Indian by color, but Western by his thought process. This was his assumption. This was his prediction. After 100 years, what is going to happen? Indians will be black. Indians will be black. Indians will be in color by color, but they will be Britishers or Westerns by their thought process. तो लास्ट 50-70 साल में 100 साल या हम 70-75 साल पकड़ते हैं, from 1947 to 2025, we have a single guy educationist that he can claim, he can say very confidently that yes, I am going to implement such kind of education system that will create this kind of mindset. No, we don't have. We haven't created. If we haven't created that kind of person, that kind of education system we have yet not launched, then we don't have right to just curse the TB Macaulay. This is the first thing. Now when we come to our topic, that the most important thing, as we have started this discussion with the TB Macaulay, I must mention one thing. It was 1930. Okay, the same this thread I drag to it goes to the extension. I extend this thread. It was 1930. It was a roundtable conference when Mahatma Gandhi was invited in London. Okay, and Royal Institute of International Affairs organized 3 days lecture series in Chatham House, London. The organizers were Royal Institute of International Affairs. They organized.
3 days lecture series was there. All the prominent historians, all the scholars, and all the prominent leaders, even businessmen, entire elite community was present for 3 days. There were in Chatham House. Okay. And at the end of the day, third day, Gandhiji came to education system and education. He started saying that before Britishers came to our country was a wonderful, beautiful tree of education. You people came and that beautiful tree of education perished, destroyed, collapsed. Okay. And he blamed Britishers for just distorting or collapsing the entire Indian education system. And as I told, there were many prominent leaders were sitting in the Chatham House. One prominent speaker, one prominent personality was there. His name was Philip Hartog. Philip Hartog was a vice chancellor of Dhaka University. Okay, he just stood after the lecture and he challenged Gandhiji. He said, "Mr. Gandhi, you just said because of Britishers, what happened? Our entire education system, Indian education system perished. Either you prove your point or apologize." Gandhiji very humbly said, Mr. Hartog, as I am not an academician and I am not in the position to answer your question, okay, but my friend who was accompanying Mr. Professor K.T. Shah, okay, the same K.T. Shah who then in parliamentary debates you will come to know the K.T. Shah was the person who was insisting for the secular constitution, okay, but that is a different thing that we are not going to discuss now. But K.T. Shah, he just pointed out, Gandhiji pointed out to K.T. Shah and he said, Gandhiji said, K.T. Shah is going to answer your question. Okay. And then you will see there is in public domain all this exchange of letters is available in public domain. Exchange of letters between Professor K.T. Shah and Philip Hartog. But Philip Hartog was not happy with the answers of K.T. Shah. When I was reading this, and when I was working during my PhD, then there was a question in my mind: what was the sources of Gandhiji's this kind of argument regarding the education system, Indian education system? The first question is, while we thinking the implementation of our Indian ideology, Indian thought, तो शुरू यहाँ से करते हैं कि as a education system, Indian education system, अगर हम research में लाने की कोशिश करते तो शुरू कहाँ से करें? Then there was a question कि कहाँ से आया गांधी जी के thought कि गांधी जी ने अपने ऐसे ही claim कर दिया? It was not like that, my dear friends. There was a source. Then when I find source, in 1920-21, this time particularly, in Young India, 2 articles were published by Daulat Ram Gupta, the same Daulat Ram Gupta, who is the founder of Daulat Ram College in North Campus. Okay. Daulat Ram Gupta wrote 2 articles in Young India. The title of that article was Decline of Mass Education in India. ये 2 article publish होते हैं. And what is the source of Daulat Ram Gupta's these 2 articles? Because Gandhiji was using Daulat Ram Gupta's article. Okay. And Daulat Ram Gupta का फिर source क्या है? किस आधार पे Daulat Ram Gupta लिख रहे हैं Decline of Mass Education in India? You will come to know. From 1822, yes, from 1822 to 1830, there were rigorous surveys were organized by the British government. 1822 to 1830. Actually, the entire India was under British control after 1850. Okay, the decline of Marathas. 1815 के बाद पूरा ऑलमोस्ट पंजाब का थोड़ा पार्ट जो तो ऑलमोस्ट पूरा भारत ब्रिटिशों के अंडर में है. 1822 to 1830 these surveys were conducted, and I just must mention Thomas Munro, that time was the governor of Chennai, okay, Madras. Then William Adam was the governor of Calcutta, Kolkata, okay. G.L. Prendergast was the governor of Mumbai, and W.G. Littner was the governor of Punjab. These 4 governors ordered their entire administration system. Every district that time was having a collectorate. Collector was there. Entire revenue system was established till 1822. And they ordered, even all the governors ordered to their district collectors, their district collector ordered to their revenue inspectors. Every village and every place was
surveyed, and there was a detailed survey done by the Britishers before 1835, because 1835 was the Macaulay Minute. Before establishing British education system, they wanted, this was a good side of Britishers, they wanted to know what exactly education system was there. My dear friends, this is the shocking surveys that you will come to know. If you go to these surveys, the complete work is extended recently, education in colonial India, by I think Professor Parimala Rao in JNU. Okay, wonderful work is there. The entire narrative has been collapsed. What is the narrative, and what is the need of adding this topic into the research? In what is the Indian way of thinking in this case? Now, then, what is the narrative? I belong to Maharashtra. In my state, even maybe in North India, the narrative is that there was no education in India. Science किसके साथ खाते हैं, science क्या है? Indians were nothing, they were know about the science. They didn't know about the education system. They never went to school. Especially the oppressed classes, the other majority, they never went to school. They were not allowed in the school. Okay, this was the claim. और ये जो सर्वेज है, these surveys just completely deconstruct this narrative. And if you go through the detailed research of Thomas Munro and William Adam, okay, in Calcutta also, then you will come to know Dome, Chamar, so many oppressed classes, oppressed caste students learning in the school. My dear friends, you won't believe me, but Chengalpattu, Salem, Bellary, Madras, okay, Machilipatnam, okay, some districts I'm forgetting because it's a long time I read that. Many districts I can mention where the Dalit students number is more than the Brahmins. Okay, some districts are there, 28,000 Dalit student number is there, and only Brahmin students are 11 to 12,000. It is double than the Brahmins. This is the Thomas Munro and William Adam that is carried. This research is carried forward by Parimala Rao, as I mentioned. Now the point is, when we think of this idea, what is the Indian way of thinking and should be implementing? Okay, तो इंडियन वे ऑफ थिंकिंग में ये सोचना हमको पड़ेगा कि रिसर्च में अगर लाना है तो दिस टॉपिक शुड बी डिग आउट वेरी सीरियसली. उसको हमें खोदना पड़ेगा कि अगर परिमला राव उसे आगे लेके गई तो परिमला राव का काम कहां तक गया है, और हमारी जो वे ऑफ एजुकेशन है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हेन वी आर थिंकिंग अबाउट द वे ऑफ थिंकिंग इन रिसर्च, तो हमको ये इसको सोचना पड़ेगा कि फ्रॉम चाणक्य टू छत्रपति शिवाजी, द रिसेंट 1674 तक जो हमें पता है, 1674 was the coronation year of Shivaji. Okay, अष्टप्रधान मंडल and ministry was there, 8 मंत्री थे, अष्टप्रधान मंडल. चाणक्य से लेके आप अकबर को ले लो, बीच में चोल ले लो, चालुक्य ले लो, पल्लव ले लो, पूरी मिनिस्ट्रीज उठा के देख लो. One thing will be very common, that is Indian way of thinking, that is Indian approach, and that should be discussed in our research. And what is Indian way of thinking in that case? You won't find any education minister, शिक्षा मंत्री नाम की कोई पोस्ट आपको चाणक्य से लेके छत्रपति शिवाजी तक ये 2500 वर्षों में नहीं मिलती. You won't find it. Now, obviously, one narrative can be set again. If there was no education minister in this country, obviously it means there was no education. शिक्षा मंत्री की जरूरत ही नहीं थी. शिक्षा मंत्री नहीं था तो शिक्षा कहां से आई भाई? But this narrative is absolutely wrong. Because, my dear friends, there was a donation, दान करने वाला या फिर जो दान मंत्री होता है, मंदिरों को दान देने वाला, वो मंत्री है, चैरिटी मिनिस्टर है, शिक्षा मंत्री नहीं है. इसलिए नहीं है कि भारत का विचार क्या है फिर शिक्षा के संदर्भ में, तो भारत का विचार यह है, इन लास्ट 2500 years एजुकेशन नेवर वाज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट. This was always remained autonomous body. Okay, that's why education was never possessed by
गवर्नमेंट, नेवर possessed by any state, इसलिए आपको शिक्षा मंत्री नहीं दिखेगा। अब पॉइंट ये है कि इंडियन थिंकिंग क्या है, तो इंडियन थिंकिंग इस एजुकेशन के मामले में ये सोचती है कि द पॉइंट इज society should have that right to conduct the education or to arrange education system for the society. ये समाज की जिम्मेदारी है। 1822 and 1830s reports reveal that what they reveal, the schools are the primaries, these are all reports are based on primary education. Okay, we are not talking about ancient, higher education, because higher education in medieval we already lost during the medieval invasion. Okay, तक्षशिला, नालंदा, विक्रमपुरी, उदंतशिला, ये सब हमने medieval में हमने खो दिए थे, medieval से या फिर पहले early medieval से। We are talking about primary education, but primary education before Britishers, there were Muslim students also learning, and the schools are run by the society. Okay, हमारे यहाँ पे उत्तर भारत में भी एक शब्द मिलता है, उसे कहते हैं धान। धान यानी चावल, धान से जिससे चावल बनता है। हमारे यहाँ पे भी इसे कहते थे धान मास्टर। मास्टर यानी टीचर, धान मास्टर। धान मास्टर क्यों कहते थे उसे? तो वो जो टीचर होता था, जो समाज ने अपॉइंट किया है, वो किसी के घर में स्कूल चलता था, किसी मंदिर के प्रांगण में चलता था, या किसी पेड़ के नीचे चलता था, या किसी प्राइवेट जगह पे चलता था। और ये इनफॉर्मल एजुकेशन था, जो बच्चे आते थे, और उस जो धान मास्टर होता था, उस टीचर का सैलरी देने का जिम्मेदारी उस बच्चे के पेरेंट्स का होता था। Now today in 2025 there are voices, different voices in different education from different sources. The demand is, as your IITs, your IIMs are autonomous, like that, why our Indian education system is not autonomous? The government changes, books change, science changes, Hindi changes. Okay, तो गवर्नमेंट का इतना इन्फ्लुएंस क्यों है? टेक्स्ट बुक बार बार बदल जाती है क्योंकि गवर्नमेंट बदल जाती है। तो ये ऑटोनॉमस होनी चाहिए, ये डिमांड हम 2025 में कर रहे हैं, लेकिन 1822 के पहले, ब्रिटिशों के पहले, भारत का एजुकेशन सिस्टम ऑटोनॉमस है। ये एक थॉट है। दूसरा थॉट ये है इसमें, भारत का थॉट, एवरीवन नीड नॉट टू गो फॉर हायर एजुकेशन। अब इसमें ये दिखेगा, अच्छा तो हायर एजुकेशन, higher education was not the oppressed classes, the Dalits were not allowed in the higher education. ये भी थॉट वहां से उभर के आया, क्योंकि जो बाइनरीज में देखने वाले लोग हैं, जो खास करके लेफ्टिस्ट हिस्टोरियंस है, उन्होंने इसको ऐसा देखा है। लेकिन पॉइंट ये है, भारत की सोच इसमें ये है कि हर एक को हायर एजुकेशन लेने की आवश्यकता नहीं है, और ये सही में ये फैक्ट है। आज हमारा सबका फोकस क्या है कि ज्यादा से ज्यादा हायर एजुकेशन में संख्या बढ़े। My dear friends, every mind has their own abilities, capabilities. Physics में मैं खुद का एग्जांपल बता दूं, I was being forced to go for science. L1 12th, I got admitted in science, physics, chemistry, maths, bio जो भी था वो मैंने लिया. And what happened? I very honestly, I must tell you, I failed. Because I was never happy with the physics, I was never happy with the mathematics, nothing to do with the chemistry. नहीं समझ में आती थी, और मुझे जबरदस्ती अगर मैं रिपीट करता भी था 12th के बाद, अगर मैं शायद एक री एग्जाम देता था, मैं 40-45% में पास होता था, फिर रोते रोते मैं बीएससी करता था। जिस सब्जेक्ट में मुझे गति नहीं है, जिससे मैं कनेक्ट ही नहीं हो पा रहा हूँ, जबरदस्ती मैं हायर एजुकेशन का किया जा रहा हूँ, तो मैंने वो साइंस छोड़ा और मैंने 12th मैंने आर्ट्स में दिया। देन आई गॉट मेरिट 12th में, तो मैं मेरे विषय से कनेक्ट कर पाया। पॉइंट ये है कि मैं जिस विषय से कनेक्ट ही नहीं कर पा रहा हूं, जबरदस्ती मुझे हायर एजुकेशन में ढकेला जा रहा है। सेकंड थॉट वाज दैट कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट आफ्टर प्राइमरी एजुकेशन दे लेफ्ट देयर एजुकेशन। व्हाई? बिकॉज दे हैड देयर बिजनेसेस, हाउस बिजनेसेस। कैपिटलिज्म आने के पहले भारत का जो मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है वो फैमिली बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। एवरी फैमिली वाज प्रोड्यूसिंग समथिंग। I just quote one example. There is one village, very small village, till there is a village, still that village, I think it is in Nellore or Nellore districts of Andhra Pradesh. Okay. The name of that village is Komasamudram.
Okay, I have written some one article on that कोमसमुद्रम. कोमसमुद्रम को अगर मैं यहाँ पे कोट करूं तो कोमसमुद्रम में रहने वाले, उस गांव में रहने वाले लोग कोई हायर एजुकेशन में नहीं गए थे, लेकिन ट्रेडिशनली कन्वेंशनली उन्होंने एक सिस्टम डेवलप किया मैन्युफैक्चरिंग का, फैमिली मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम. नॉट ओनली कोमसमुद्रम, आई कैन कोट सेवरल थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स विलेजेस इन मध्य प्रदेश, जबल नियर जबलपुर. दे वर आल्सो डूइंग द सेम. व्हाट दे वर डूइंग, एवरी विलेज वाज हैविंग अ फर्नेस, and that furnace was running on the palm tree, dried palm trees. उसकी आग जलाते थे फर्नेस में, और पाम ट्री के पन्नों से आग जला के उससे प्योर आयरन निकालते थे. अब आप बोलेंगे तो इसमें क्या नया है, तो ठीक है आयरन निकालने की प्रश्न. नो माय डियर फ्रेंड्स, कोमसमुद्रम वाज नोन फॉर द वर्ल्ड्स बेस्ट क्वालिटी आयरन, वर्ल्ड्स, नॉट इंडिया. और कोमसमुद्रम के आयरन से बने हुए जो वेपन्स होते थे, तलवारें होती थी, उसे एक्सपोर्ट किया जाता था दमास्कस तक, और दमास्कस से वो दुनिया भर में जाती थी. नाउ यू इमेजिन दैट एंटायर कोमसमुद्रम एंड दैट एंटायर रीजन वाज based that they were just running that model of family manufacturing system. This is also one thought in economy and manufacturing, that we were having that family manufacturing system. और भारतीय एजुकेशन में थॉट ये था कि सबको हायर एजुकेशन में जाने की जरूरत क्यों है, कि घर का बिजनेस है भाई, उसको कौन संभालेगा. तो वो घर के बिजनेस को चलाने के लिए प्राइमरी एजुकेशन के बाद वापस आ जाते थे. इट डजंट मीन दैट यस देयर वाज डिस्क्रिमिनेशन. Obviously, there was discrimination. At many places, the Dalits and the oppressed classes were denied their rights to get admission. We can talk about the latter period of even the Dr. Ambedkar's period. But my dear friend, I always use one quote. All the time, all the places, all the instances are not common. This is a very important quote for history learners. All the time, all the places, all the instances, all the situation is not common. When Sati was, a woman was dragged to the pyre in the North India, Jizau was stopped by Chhatrapati Shivaji, and Jizau declared that I am not going to jump in the pyre. To keep my self immolation मैं नहीं करूंगी. इसका मतलब महाराष्ट्र में महिलाओं को वो अपॉर्चुनिटी थी, वो संधि थी कि मैं सती जाओ या नहीं जाओ. कई जगह ये मैंडेटरी कर दिया गया था. बंगाल के कुछ हिस्से में बंबू लगा के महिलाओं को ढकेल दिया जाता था, जो बहुत ही अनह्यूमन था. लेकिन कुछ पार्ट में महिलाओं के पास वो चॉइस भी था कि मैं नहीं जाऊंगी सती. That's why I said in history, all the time, all the places, all the instances are not common. Some instances cannot be generalized, and generalized instances cannot be optional. Now the point is, तो दिस इज थॉट बिहाइंड दैट एजुकेशन सिस्टम एंड मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम. ये एक हुआ कि इंडियन थॉट ये है कि इसको हमने, इंडियन वे ऑफ थिंकिंग को हम रिसर्च पेपर में ला सकते हैं. ओके, अब इसको कैसे ला सकते हैं? तो इसको लाने का तरीका यह है कि हमको, खास करके मैं आई मस्ट टेल ऑल द स्टूडेंट्स, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन एंशियंट, ओके, और मेडिवल और मॉडर्न. For example, I quote two examples. There is my friend, he is a medievalist, and his name is Dr. Kedar Phalke. He's from Pune. Okay. Kedar Phalke was interested in medieval. He's a medievalist, medieval historian. I think almost 21 books already published. Kedar Phalke की केवल medieval पे. तो अपनी इंडियन थॉट को इंप्लीमेंट करने का भी तरीका है. हमारी सोच से, अगर हमारी दृष्टि से अगर उसको देखना है तो करना क्या पड़ेगा? सबसे पहले, बहुत बार ऐसा होता है कि कहीं से रिसर्च पेपर के द्वारा या फिर किसी लेक्चर के द्वारा हम लोग सुनते हैं, वी जस्ट देयर इज अ किक स्टार्ट एंड वी स्टार्ट थिंकिंग, अरे व्हाई शुडंट आई रीड दैट बुक विच इज ऑन एंशियंट. तो स्टिल देयर इज नो स्ट्रेसेस ऑफ आर्यन इन्वेजर, कोनराड एल्स्ट हमने चालू कर दिया. ठीक है, शुरू कर दिया. फिर हम लोग सीधा मॉडर्न में आए. हमको प्रसन्नन पार्थसारथी बहुत अच्छा लगा. फिर हमने प्रसन्न पार्थसारथी को पढ़ना शुरू कर दिया. व्हाई यूरोप ग्रीव रिच एंड एशिया डिड नॉट. हम सीधा प्रसन्न पार्थसारथी पे आए. फिर बीच में हमको लगा कि यार नहीं,
साला ये जो थॉट चल रहा है कि छत्रपति संभाजी को सही में ऐसे मारा था नहीं मारा था, तो आई मस्ट रीड सम फरमान्स ऑफ औरंगजेब, तो मैं मासिर आलमगिरी, उसके बाद भीमसेन सक्सेना, ये भी मैं पढ़ के देखता हूं. दिस इज अ एग्जैक्टली रॉन्ग वे ऑफ रिसर्च और रीडिंग. ये मैं भी गलतियां आपके समय में करता था, ठीक है, बहुत दिन तक मैंने भी की. लेकिन अगर आपको इंडियन थॉट को लेके काम करना है और उसे इंप्लीमेंट करना है तो उसका तरीका है. The way is you first decide your domain. I know that is going to be very narrow, that is going to be very short, but that is the need. You decide your domain first. If I decide my domain is 1800 to 1964, death of पंडित नेहरू, मैंने इतना डोमेन मेरा 150 साल का 160 साल का तय किया. नाउ यू स्टार्ट रीडिंग वॉट एवर द प्राइमरी सोर्सेस आर अवेलेबल. उसमें फिर आप पार्टीशन ले लो, 1857 फिर आप 1857 का वॉर ले लो, फ्रीडम स्ट्रगल ले लो, टॉपिक लेके फिर उसको पढ़ना शुरू करो. देन व्हाइल यू स्टार्ट रीडिंग, यू विल ऑल ऑफ अ सडन व्हाइल दिस प्रोसेस गोज ऑन, यू विल क्लिक दैट अरे यार इसमें से ये थॉट निकल सकता है. When I was reading Jeremy Bentham, okay, so all of a sudden I came to conclusion that whatever Jeremy Bentham is saying, that can be correlated with the idea of dharma, artha, kama, moksha, the integrated approach that we have given to the world. Jeremy Bentham's approach is not integrated. Karl Marx's approach is not integrated. James Mill's approach is not integrated. In despite of that, our approach, dharma, artha, kama, moksha, when we elaborate, our approach is integrated. Another way of thinking India is having, that is an integrated approach towards everything. When we say, sarvepi sukhinas santu, sarve santu niramaya, sarve bhadrani pashyantu ma kaschit dukkha bhave, this is the integrated approach. You just imagine that man who wrote this in Vedas, what kind of compassion and love he should be having for the society. Not even human being, even the creatures, every human being, every creature should be happy. सर्वेपि सुखिनः सन्तु, इतना इंक्लूसिव आइडिया ये भारत का थॉट है. इसलिए किसी थॉट को इंप्लीमेंट करने के पहले अपना डोमेन तय करें. यू डिसाइड योर डोमेन, whether you are going to work on modern, medieval. When you decide your domain, you will be needed some expertise. If you are working on medieval, you must be expert of Sanskrit, you must be expert of Farsi. जिसको मेडिवल पे काम करना है उसने फारसी पे काम अभी ही शुरू कर दो, यूनिवर्सिटी में कोर्स चलते हैं उसके, ठीक है. जिसको मॉडर्न में काम करना है, मॉडर्न के लिए जैसे जैसे आप लोग एंशिएंट से मॉडर्न में आते जाते हैं तो सोर्सेस, प्राइमरी सोर्सेस बढ़ते जाते हैं, प्राइमरी में आते आते, सॉरी मॉडर्न में आते आते, एंड व्हेन यू गो टू एंशिएंट तो प्राइमरी सोर्सेस कम होते जाते हैं. तो यू शुड बी एक्सपर्ट इन संस्कृत, Pali, okay, even in Brahmi or Kharoshti. If you are learning, if your domain is ancient, you must know Farsi, Arabi. If you are working on medieval, and modern is not language issue. तो ये मैंने दो आइडिया बताए. अब भारतीय जो थॉट है, वे ऑफ थिंकिंग, इंडियन वे ऑफ थिंकिंग है, तो उसमें एक मैं उदाहरण आपको जोड़ना चाहूंगा. दैट वन इज अबाउट द डिफरेंट डोमेन्स आर देयर. फॉर एग्जांपल वी डिस्कस ऑन एजुकेशन. इंडियन वे ऑफ थिंकिंग एजुकेशन के मामले में कैसी है. नाउ इंडियन वे ऑफ थिंकिंग, व्हाट अबाउट द आयुर्वेद एंड व्हाट अबाउट द हेल्थ, इंडियन वे ऑफ थिंकिंग कैसी है. आई वाज डिस्कसिंग विद अ वेरी सीनियर आयुर्वेदिक फेलो, आयुर्वेद डॉक्टर, वेरी सीनियर इन महाराष्ट्र, एंड व्हेन आई वाज कंपेयरिंग, कहीं से डेटा आ गया और मैंने उनसे बोला कि वी आर हैविंग मोर टेम्पल्स देन द हॉस्पिटल्स. ये जो एक नैरेटिव होता है, वो नैरेटिव मैंने उनके सामने सुना दिया है कि हमें, हमारे देश में हॉस्पिटल्स की जरूरत ज्यादा है लेकिन मंदिरों की संख्या ज्यादा है, लेकिन हॉस्पिटल कम है. तो उन्होंने मुझे बोला कि हॉस्पिटल्स ज्यादा है. मतलब सर इतना पॉपुलेशन है, हॉस्पिटल तो कम है. हमारे देश में 1 लाख के पॉपुलेशन के पीछे एक बेड है, 1 लाख के पीछे एक बेड, अगर एडमिट करने की नौबत आई तो. तो उन्होंने कहा कि मैं फिर कहता हूं हॉस्पिटल ज्यादा है, डॉक्टर भी ज्यादा है, इतनी आवश्यकता ही नहीं है. अब इंडियन वे ऑफ थिंकिंग कैसा है, उन्होंने मुझे समझाया. मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट वी आर डूइंग इन एज फॉर एज हेल्थ इज कंसर्न, ओके,
हेल्थ को भारतीय दृष्टि कैसे देखती है? भारतीय दृष्टि हर चीज का इलाज, मैक्सिमम चीजों का, छोटी मोटी चीजों का, जो 99% तुमको हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं, वो घर के छोटे छोटे नुस्खों में देखती है। उसके लिए बार बार हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन वी फॉरगेट ऑल दिस, आवर थेरेपीज, आवर वे ऑफ सूदिंग, and that's why we need to go for everything. Even we want paracetamol and amoxicillin, we go to doctor. उन्होंने कहा कि हमारी वे ऑफ लिविंग हमने बदल दी है, इसलिए बीमारियों का भी संकट ज्यादा है। अगर आप देखेंगे तो यू विल कम टू नो वी आर सफरिंग थ्रू मोस्ट ऑफ द डिसीजेस, दोज आर कमिंग फ्रॉम आवर लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, even your diabetes, in your all the so many bloating and whatever it may be, कई सारी चीजें हैं 99% मेजर छोड़ के जो हमारे लाइफस्टाइल से क्रिएट हो रही है। तो ही सेड डॉक्टर्स एंड हॉस्पिटल्स आर एम्पल, वी नीड टू करेक्ट आवर लाइफस्टाइल। नाउ वी हैव स्टार्टेड दिस पॉइंट एज अ रिसर्च पॉइंट, नाउ कम टू द अनदर एस्पेक्ट ऑफ दिस। देयर इज वन incidents. Okay, it is I found one letter that is in I think 1732, 10th of February 1732, 1732 का एक लेटर है, और वो लेटर है डॉक्टर जे.जेड. हॉलवेल का। ये आपको नेट पे मिल जाएगा। डॉक्टर जे.जेड. हॉलवेल इज राइटिंग टू हिज fellow brothers, those who are physicians in London, and he is discussing a detailed inoculation system, vaccination system in India. And he is discussing in that letter about the smallpox. He was discussing about smallpox vaccine. So J.Z. Hallwell is writing and discussing about this smallpox vaccine, और 1732 में ये बंदा कलकत्ता में है, और वो बोलता है कि जैसे समर आता है और स्मॉलपॉक्स की पेंडेमिक शुरू हो जाता है, एपिडेमिक शुरू हो जाता है, वैसे ग्रुप ऑफ फिजिशियंस एवरी समर visit to Calcutta before epidemic, and they go they knock each and every corner of the city. वो शहर में जाके नॉक करते हैं और हर घर में लोगों को जाके वो वैक्सीनेट करते हैं। एंड J.J. Hallwell is elaborating the entire vaccination process. वो elaborate कर रहे हैं। And what is the vaccination process? वो स्किन को पंक्चर कर रहे हैं, उसमें जो उनके पास वायल है, ग्लास वायल, उस ग्लास वायल में लाइव वैक्सीन है, वायरस है, उस वायरस को वो इंजेक्ट कर रहे हैं निडल के द्वारा। इंजेक्ट करने के बाद वो जो चावल है पका हुआ जो भात जिसे बोलते, पका हुआ चावल का पेस्ट उसके ऊपर लगाए, उससे पट्टी बांध के वो बोल रहे कि 3 दिन तुझे ठंडे पानी से नहाना है, तुझे बुखार आएगा, वैक्सीनेशन हो गया। उस बंदे को चिकन पॉक्स का, स्मॉल पॉक्स का, उसे एपिडेमिक से वो बच जाता है। और ये J.Z. हॉलवेल पूरा डिटेल लिख रहा है। नाउ व्हेन अगेन जस्ट डिग दिस एंटायर एपिसोड, इसके पहले 1732 के पहले, इस लेटर के पहले और एक लेटर मिलता है लेडी मेरी मॉन्टेग्यू का। वो एक ब्रिटिश महिला है और वो इस्तांबुल में है, टर्की में, और इस्तांबुल में उसकी पहली बेटी जो है उस स्मॉल पॉक्स से अफेक्ट होती है, उसका चेहरा खराब होता है। उसके बाद उसकी छोटी बेटी, नेक्स्ट समर है, उसकी छोटी बेटी की बारी, उसे डर है कि मेरी छोटी बेटी भी इन्फेक्ट ना हो जाए, उसका चेहरा भी खराब ना हो जाए। तो उसके घर में एक नौकरानी है, शी इज ग्रीक, शी इज नॉट इंडियन, शी इज ग्रीक। और वो कहती कि मैडम मैं कोशिश करूं, क्या मैंने एक टेक्निक सीखी है, एक लाइव वायरस है इसका, मैं इंजेक्ट करके इसे वैक्सीनेट करती हूं आपकी बेटी को। और वो उसी टेक्निक से जो इंडियन यूज कर रहे हैं, 1715 का ये, उसी टेक्निक से उस बच्ची को वैक्सीनेट करती है और एपिडेमिक से वो बच्ची बच जाती है। तो शी सरप्राइज लेडी मेरी मॉन्टेग्यू, द लेटर इज अवेलेबल इन द नेट। शी सरप्राइज एंड उसे लगता है कि अरे ऐसे कैसे हो गया। देन दैट लेडी गोज टू लंडन। Okay, she described entire the procedure of vaccination, inoculation, and Edward Jenner is also available in that meeting. And my dear friends, Edward Jenner's smallpox vaccine year is 1796. We are discussing in 1732 and 1750. Okay, this kind of example ample we can quote, but the point is I want to just go to the deep. That the point is, from where that Greek lady learned. When she asked, where from you learned this technique? She answered, I learned from a Chinese man. When China comes, wherever, okay,
Very recently, one wonderful book has published by William Dalrymple. The book is Golden Road. Those guys are interested in ancient. They must read that book. My domain is not ancient, but I have bought that. पढ़ना चाहिए सबने, किसी का भी कुछ भी डोमेन हो. सवाल यह है कि जब वो बात चाइना तक आती है और चाइना से वो सीखती है, तो वो क्वेश्चन हमारे मन में रिसर्च गैप करके खड़ा होना चाहिए कि चाइना से अगर वो कोई बंदी सीख रही है, तो ऑब्वियसली there is one another research paper written by Professor Vijaya Deshpande from Pune. The title of that research paper is Medicine was the carrier of Buddhism in India. Yes, medicine was the carrier of Buddhism in China. What was the carrier? Medicine. For what? Buddhism. Medicine was the carrier of Buddhism. How Buddhism reached there, went there. So Buddhism reached in China through medicine. It's a detailed 28 pages article written by, wonderful work done by Professor Vijaya Deshpande. And another professor I can quote in this manner, that is a Professor Shashi Bala. She's a dean in Nandalal Nuwal's Center for Indology in Delhi. शशि बाला जी तो 10-12 साल चाइना में थी, और शशि बाला जी अभी है, हम लोग उनसे मिल भी सकते हैं. इफ यू विश, कभी दाक्षी में उनको बुलाते हैं. शशि बाला जी ने चाइना पे जो काम करके रखा है, शशि बाला जी विल टेल यू thousands and thousands of episode in Chinese records. Wherever a Ayurvedic doctor or Ayurvedic physician Chinese found, they came, their agents or their क्या बोलते हैं उन्हें, diplomats came and demanded to that particular king कि ये आपका जो आयुर्वेदिक स्कॉलर है ये हमें दे दो. If that king denied कि नहीं, ये स्कॉलर हम नहीं देंगे, आयुर्वेद का डॉक्टर नहीं देंगे, तो ऐसे उदाहरण है, प्राइमरी सोर्सेस है, जिसमें चाइना ने 70,000 की सेना भेज के वो फिजिशियन को उठा के चले गए. These are the examples. Now the point is, दो चीजें अलग अलग है. एक तो मेडिसिन वॉज द कैरियर ऑफ बुद्धिज्म इन चाइना, ये एक फिर रिसर्च पॉइंट हुआ. दूसरा, हमारा आयुर्वेद के मामले में वे ऑफ थिंकिंग क्या है. तो ये एक एक बिंदु मैं आपके सामने रखता हूं कि एक एक मुद्दा लेके हमें उसे रिसर्च में, रिसर्च पेपर राइटिंग में कैसे उतारना है. इफ वी डोंट हैव दैट विजन ऑन व्हाट टॉपिक एंड व्हाट सोर्सेस वी कैन यूज एंड व्हाट टॉपिक कैन बी इंसर्टेड इन आवर रिसर्च राइटिंग, इफ वी कम टू द थॉट ideal process, the thought process. तीसरे बिंदु पर अगर थॉट प्रोसेस पे अगर हम आते हैं, तो थॉट प्रोसेस के मामले में इवेंजेलिकलिज्म, कैपिटलिज्म, मार्क्सिज्म, ओके, यूटिलिटरिज्म, कॉन्सेप्चुअलिज्म, कई सारे इज्म पैदा होके आते हैं. Indian thought process was never limited to any kind of ism. The very first thing. Okay. Indian thought process was always differ from the conception of religion in West and conception of dharma in East. Absolutely different. Okay. Conception of Indian thought process में dharma is different and religion is different. तो हमें रिसर्च में इम्प्लीमेंट करने के लिए इन आइडियल डेप्थ को, थोड़ा आइडियलिस्टिक डेप्थ को समझना चाहिए. Two definitions I must quote. One lady goes to Bhagwan Buddha and asks, you are preaching, you are talking very nice, but I am an illiterate woman. I don't understand what you say. Your dharma, okay, or your dhamma. You just elaborate me dhamma in a very simple manner. Okay. And Bhagwan Buddha elaborates dhamma in very simple manner. Sabba papasya akaranam kusalasya upasampada sachitta pariyodaparam etan buddhana sasanam. This is the definition of Buddha. क्या है? सब्ब पापस्य, काया वाचा मनसा. भारत की थॉट प्रोसेस क्या है? काया वाचा मनसा, मन से किया गया हुआ पाप भी पाप ही है. सामने हमने बहुत तारीफी कर दी, यू आर प्रेजिंग, लेकिन अंदर से साला मालूम है तो कितना कमीना है, अंदर से आ रही आवाज, तो दैट इज ऑल्सो पाप ही है, माना गया है हमारे इसमें. ठीक है. तो काया वाचा मनसा, बोल के, ठीक है, वाचा से बोल के भी पाप है, मन में सोचना भी पाप है, और मारना भी पाप माना गया है.
तो सब्ब पापस्य करणम, तीनों नहीं, कुशलस्य उपसंपदा, उपसंपदा यानी द कलेक्शन ऑफ व्हाट, द गुड कर्मास, कलेक्शन ऑफ गुड कर्मा, कुशलस्य उपसंपदा, सचित्त परियोद परन, चित्त की शुद्धता, इंटरनली आउटरली दोनों तरफ से, अंतर बाह्य तरफ से मन की शुद्धता, एतन बुद्धान शासनम, धर्म की इतनी सिंपल व्याख्या बुद्ध करते हैं। उससे वही व्याख्या अगर हम दूसरे शब्दों में, संस्कृत में, ये पाली में मैंने बताया, संस्कृत में अगर मैं महर्षि व्यास के शब्दों में बताऊं तो परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम्, परोपकार पुण्य, परपीड़ा पाप। भारत की थॉट प्रोसेस एंशिएंट की देखो क्या सोच रही है, क्या है। तो ये हुआ, ये दोनों चीजें हुई। नाउ द पॉइंट इज, ये जो थॉट प्रोसेस है ये बहुत इंक्लूसिव, फ्लेक्सिबल और सबको अपने एम्बिट में, अंडर वन एम्बिट लाने वाली है, एज कंपेयर टू वर्ल्ड्स एनी थॉट। ओके, आवर थॉट इज नॉट बाइनरी थॉट. Our thought never created that notion which pertains to North India versus South India, Northeast versus rest of the India, the peasants versus gentry, the upper caste versus the lower caste, the Brahmin versus the Dalit, okay, the rich versus the poor, the man versus the woman. अभी मैन वर्सेस वुमन जाके मैन वर्सेस वुमन वर्सेस LGBTQ, है ना, ये इतनी सारे बाइनरीज खड़े कर दिए. दीज बाइनरीज यू जस्ट ऑब्जर्व, दीज बाइनरीज नेवर कम फ्रॉम इंडियन थॉट ऑफ ओरिजिन, वहां से नहीं आते. फिर ये बाइनरीज आते कहां से है? ये बाइनरीज पूरे वेस्ट माइंडसेट से आते हैं, वेस्टर्न आइडियोलॉजीज से आते हैं. तो वाइल थिंकिंग ऑफ दैट एंगल, दिस एंगल मस्ट बी केप्ट इन माइंड कि रिसर्च करते समय इंडियन थॉट ऑफ थिंकिंग, इंडियन वे ऑफ थिंकिंग क्या है, भारत का विचार कैसे है, भारत धर्म अर्थ काम मोक्ष में काम की जो केवल सेक्सुअल डिजायर्स करके एक कॉम्पैक्ट डेफिनेशन वेस्ट ने कर दी है, उससे आगे जाके सोचने की जरूरत है. दैट इज अ रिसर्च पॉइंट. काम जो है वो केवल शारीरिक भूख का नहीं होता है, वो मन की भी भूख होती है, आत्मा की भी होती है, बुद्धि की भी होती है. मन, आत्मा, बुद्धि सब स्तर पे अपने अपने काम होते हैं. अगर कल जाके हमारा अर्चित जो है अच्छा काम कर रहा है करके मैं उसे पीठ पर हाथ रखता हूं, थपथपाता हूं और कहता हूं कि यार तू काम बहुत अच्छा कर रहा है, कौन एक डिजायर फुलफिल हो रही है, उसका एक काम सेटिस्फाई हो रहा है. वो काम कौन सा है? उसकी जो बौद्धिक भूख है कि मैं दाक्षी के माध्यम से कुछ करूं, बौद्धिक भूख का सेटिस्फाई होना भी काम है. ओके, और इस सब के नीचे जो रखा है वो रखा है धर्म. तो दिस इज द कंसेप्शन ऑफ धर्म and the conception of religion. When we come to Western way of thinking and when come to religion, the problem of confrontation, the religious confrontation today, the root cause of this religious confrontation today is religion, not dharma. Dharma is applied to all, whether you are rich, whether you are poor, whatever it may be. But when we come to religion, the concept that is defined by the West, okay, गलती से हमारे देश में भी रिलीजन इज धर्म कर दिया. धर्म एंड रिलीजन का मतलब एक नहीं होता, लेकिन कर दिया गया है. तो प्रॉब्लम वहां से शुरू होती है. और when you are talking about the religion, the problem of the root cause of confrontation is religion. Religion is based on the particular text, and when your text is having a problem, the confrontation starts. The religion is problematic, and that's why if we want to avoid the confrontation, those are based on textual problems that must be discussed, that must be debated in research writings. In the morning, I just teach one paper. In that paper, I was just going through Viva. I has just defined dharma and religion. So he defined, and then I asked him very casually, what is do you feel that the textual books or whatever the literature is, the religious literature is the problem of today's confrontation, religious confrontation? He said, no, sir, never. All religions are equal. All religions teach a same thing, and all religions are generous. All religions teach compassion, love, everything X, Y, Z, blah, blah, blah. If it is, I'm very sorry to mention, then what about Surah Toba, ayat number 5?
Ayat number 9. When I must quote in that sense Wafa Sultan. Wafa Sultan says, thousands and millions and billions of dollars have been invested by US for what? To find the nuclear weapons in Iraq, Syria, Jordan, Lebanon. Okay. Instead of that, if the scholars of America, US have been found, or just turn the pages of the religious texts from where they are getting that mindset, the problem would be solved. So instead of talking the original sources, debating the original textual sources, we are just revolving around the different लक्षण जो है, लक्षण प्रॉब्लम के लक्षणों पे चिंता करते रहना और लक्षणों की चर्चा करना, मूल मुद्दे की चिंता न करना, ये भी एक मुद्दा है। प्राइमरी सोर्सेस को लेकर हम इसे ला सकते हैं, हम इसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। नाउ कम टू द आइडिया ऑफ नेशन, चौथे और आखिरी पॉइंट पे मैं आता हूं। नेशन को अगर देखें, आई मस्ट कोट बेनेडिक्ट एंडरसन एंड जॉन स्ट्रेची। बेनेडिक्ट एंडरसन जॉन स्ट्रेची केस में अगर देखें तो बेनेडिक्ट एंडरसन कहता है कि इट्स अ इमेजिन्ड कॉन्सेप्ट नेशन। ओके, जॉन स्ट्रेची कहता है देयर इज नो, इंडिया वाज नेवर अ नेशन। Now the point is, what is the parameters of nation in Western concept, Western idea? One race, one ethnicity, one religion, one language, and one geographical territory which has been ruled by long period by a particular ruler. One language, one ethnicity, one race, one religion. These all parameters are not applied to India because different languages are there. We are having different we are having different expression of culture. I am saying, just I want to drag your attention towards the word different expression of culture, not different cultures. When you say we are having different cultures, very casually we say we don't have different cultures, we are having one culture. Expression is different, because a person who is Ramlal in Uttar Pradesh, Ramaswamy in Tamil Nadu, cultural expression is different. Here there is a mandir, there is a kovil. Here there is a Bhagavad Gita, there is a Tirukkural. Idea is same. The expression of culture is different and culture is one. उसकी अभिव्यक्ति अलग अलग हो सकती है, मूल जो उसका स्रोत है वो एक ही है। तो रिसर्च पॉइंट में इस एंगल से भी हम देख सकते हैं क्या? ये एंगल हमने देखना चाहिए। हम मेडिसिन देख सकते हैं, हम थॉट देख सकते हैं, इंडियन वे ऑफ थिंकिंग, जो इंडियन वे ऑफ थिंकिंग से हम दे सकते हैं उसको इंडियन वे ऑफ पैरामीटर्स में सेट करना। मैं नेशन की बात कर रहा था, तो नेशन का जो डिस्कशन है वो मैं कंप्लीट करता हूं। तो वेस्ट के लिए भारत राष्ट्र था ही नहीं, यही आइडिया हमारे हिस्टोरियंस ने आगे चलाई। भारत नेशन था ही नहीं, इसलिए फिर 23 टुकड़े करने की, 22 टुकड़े करने की, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह, ये जो चलता है वो उसी आइडिया से चलता है कि भारत तो नेशन है ही नहीं ना, ये तो एक पिटारा है, अलग अलग लैंग्वेज, अलग अलग रेस, अलग अलग एथनिसिटी के लोग डाल दिए, इट वॉज नेवर अ नेशन। बट माय डियर फ्रेंड्स, जब अगस्त्य ऋषि नॉर्थ से निकलकर विंध्याचल क्रॉस कर साउथ में जाते हैं और साउथ से कालड़ी से आदि शंकराचार्य निकलकर बद्रीनाथ और केदारनाथ में जाते हैं, वी डोंट नीड द वेस्टर्न पैरामीटर्स। इंडिया इज अ कल्चरली यूनिफाइड नेशन। पॉलिटिकल यूनिफिकेशन छोड़ दो, पॉलिटिकल यूनिफिकेशन वॉज नेवर क्राइटेरिया फॉर इंडिया, कल्चरल यूनिफिकेशन वॉज क्राइटेरिया, बिकॉज कंबोडिया से लेके अफगानिस्तान, इराक तक मैं बोल रहा हूं, कंबोडिया से लेके इराक तक, और चंगेज खान के ये जो मंगोलियंस है ना, मंगोलियंस का विचारों का बड़ा कंप्लेंट है भारतीयों से, इंडियन लोगों से, क्योंकि हमें क्या लगता है ये जो मुगल है ना, मुगल, ये सब मंगोलियन थे। गलत। और होता यह है सबको मंगोलियन समझते हैं और मंगोलियंस को हम लोग बड़ा बार्बेरियस समझते हैं, लेकिन वो मंगोलियंस तंत्र को मानने वाले, भारतीय तंत्र परंपरा को, शाक्त परंपरा को मानने वाले लोग थे एक जमाने में। ओके, एंशिएंट में वो एक अलग डिस्कोर्स है। मैं मंगोलिया के बारे में बात करना मेरा डोमेन नहीं है, शशि बालाजी से एक आध बार हम लोग सुनेंगे, क्योंकि शशि बालाजी, प्रोफेसर शशि बालाजी को मंगोलिया ने उनके देश का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न जैसे दे रखा है, क्योंकि शशि बालाजी इज द ओनली वुमन इन इंडिया, शी ट्राइड टू चेंज that narrative about the Mongols। तो मंगोलियंस हम बारबेरिक समझते, रेशिड समझते, ये जो सब
एडजेक्टिव्स लगाए गए हम लोगों ने, तो वो एक अलग इशू है। लेकिन पॉइंट ये है कि मंगोलिया से लेके अफगानिस्तान, इराक से लेके कंबोडिया तक, दिस वॉज अ कल्चरल नेशन, कल्चरल यूनिफिकेशन वॉज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस कंट्री। तो वेस्टर्न पैरामीटर्स न जाते हुए वाई इंडिया इज ए नेशन, बिल्कुल पढ़िए। आप अगर देखेंगे तो 2 आर्टिकल मैं कोट करूंगा। वाई इंडिया इज ए नेशन पे संक्रांत सानू का एक आर्टिकल है, वाई इंडिया इज ए नेशन, मिल जाएगा आपको नेट पे। और दूसरा वाई इंडिया इज नेशन पे इनका किनका, मेरे ख्याल से राम माधव का, एक राम माधव का भी एक बहुत अच्छा आर्टिकल है, इंडिया इज ए नेशन करके। तो हमारी कंसेप्शन में, इंडियन वे ऑफ थिंकिंग में, वी मस्ट गो थ्रू दीज आइडियाज, वी मस्ट गो थ्रू। मैंने आपको एक एग्जाम्पल कोट की, आप इससे और 100 चीजें मेरे से ज्यादा शायद आप बता पाएंगे कि सर ये भी डोमेन है इंडियन वे ऑफ थिंकिंग में, इसमें भी हम काम कर सकते हैं। और माय डियर फ्रेंड्स, वी नीड टू वर्क वेरी सीरियसली। मैं भी इसके लिए दोषी हूं कि पिछले 40 साल में मैंने, 48 साल की उम्र में मैंने भी कुछ नहीं लिखा। हाँ, मैंने सिर्फ आर्टिकल्स पब्लिश कर दे रहा, लेकिन दिस इज अ टाइम दैट आई मस्ट कम टू द बुक्स और सीरियस रिसर्च वर्क करने की जरूरत है इंडियन वे ऑफ थिंकिंग में। और एक उदाहरण अगर मैं जाते जाते कोट करूं, अक्षित, समय हो गया ना मेरा? जी सर, आपके ऊपर है, आप जितना समय लेना चाहें। नहीं, ये सब भाग नहीं जाना चाहिए, बोर हो जाएंगे नहीं तो। नहीं बहुत ही ज्यादा ही। बहुत अच्छे बच्चे हैं सब, ध्यान सर इतने सारे टाइम से जुड़े हुए हैं सारे। 1802 में जब मराठा गए और हमने ऑलमोस्ट गुलामी स्वीकार ली, तब 1800 के बाद आप लोग देखेंगे कि भारत में एक आइडियोलॉजिकल रेनेसां हुआ। वो बंगाल में भी हुआ, महाराष्ट्र में भी हुआ। महाराष्ट्र ने बड़ा सीरियसली सोचना शुरू किया कि सत्ता क्यों गई, ये एक डोमेन है। तो इंडियन वे ऑफ थिंकिंग में हमने ये भी सोचना चाहिए कि हमारी सत्ता क्यों गई और फिर से हम लोग खड़े कैसे रहे आइडियोलॉजिकली। वेस्टर्न इतना जबरदस्त आक्रमण था, उस आक्रमण के खिलाफ खड़ा होके मैं मानता हूं कि बहुत सारा नुकसान हमारे समाज का हुआ है। हमारे माइंडसेट बदल गए, हमारा सोचने का तरीका बदल गया है। पहलगाम में अटैक होने के बाद हमारे ही प्रोफेसर्स वीडियो पर आकर बोलते हैं कि बिहार के इलेक्शंस आ रहे हैं इसलिए शायद पहलगाम हुआ है। इतनी नीच और इतनी ओछी सोच कोई रख सकता है? दैट इज वेरी रिडिकुलस। मेरे स्टाफ रूम में एक बंदा कह रहा था, वो स्टाफ रूम नहीं होता तो मैं मुंह तोड़ देता उसका, लेकिन क्या करे। तो यानी नवंबर में बिहार के इलेक्शन है, इसलिए माहौल बनाने के लिए मोदी जी ने ही अटैक करवाया है, बीजेपी वालों ने, और अपने ही 27-28 लोग मार दिए। क्या नैरेटिव चलाते हैं। तो ये भी सोचना पड़ेगा। डिस्टॉर्शन तो है, डिस्टॉर्शन नहीं, ये सोच कहां से आती है? डिस्टॉर्शन है, लेकिन सवाल यह है कि इसके बावजूद भी इस देश का हिमालय हिमालय है। 1500 साल के आक्रमणों के बाद यहाँ की गंगा गंगा है, यमुना यमुना है, वितस्ता वितस्ता है, कावेरी कावेरी है, यहाँ का विंध्याचल है, सह्याद्री है, अरावली है। ये पूरा का पूरा देश अपने कल्चर और क्रोनोलॉजी के साथ जिंदा है। अगर क्रोनोलॉजी की बात जाते जाते करूं तो आप लोगों ने च्यवनप्राश का शब्द सुना होगा, च्यवनप्राश। वेदों में, ऋग्वेद में च्यवन नाम के ऋषि का उल्लेख आता है और उन्हें बूढ़ापा आ गया तो उन्हें लगा कि मुझे यार जवान दिखना चाहिए, मैं तो बूढ़ा होते जा रहा हूं। तो अश्विनी कुमार ने उनके लिए प्राश बनाया, यानी एक दवाई बनाई। उस प्राश खाने के बाद वो जरा फिट और बड़ा जवान फील करने लग गए। च्यवनप्राश शब्द आज भी हमारे यहां पे इस्तेमाल होता है और उसी संदर्भ में इस्तेमाल होता है। दिस इज द क्रोनोलॉजी ऑफ दिस कंट्री। आफ्टर 1000 years of invasion, we have not lost our chronology, we have not lost our history, we have not lost our thought process और हमारा कल्चर। उसको कैसे हमारी अगले वाली जनरेशन बचाए रखती है, उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है एकेडेमिया पे और हम पे। ओके, नाउ these are some topics that this is the way of Indian thinking। इसमें हम अलग अलग विषयों को कैसे रखते हैं और उसे रिसर्च में कैसा लाते हैं। रिसर्च पेपर राइटिंग के ऊपर अगर आप लोग चाहते हैं तो दाक्षी के लिए हम एक स्पेशल रिसर्च पेपर राइटिंग वर्कशॉप भी करेंगे। ये टॉपिक्स है और उसको रिसर्च पेपर में कैसे लाना है। इन ऑल सेंस, in concluding remark, in all sense, I'm ready to help you guys. That may be your research paper writing workshop or whatever it may be. If you want to assist with some authors and work with them, that is also okay. And once again, I congratulate all you guys, especially Dakshi team and all the participants that you invited me and you listen me
and tolerate me with a boring lecture. Thank you. थैंक यू वेरी मच सर। और ये तो कहना बिल्कुल ही गलत होगा कि ऐसे बोरिंग लेक्चर था, हमें आज बहुत कुछ सीखने को मिला। और इसके साथ ही अब मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि किसी कोई क्वेश्चन हो तो पूछ ले। जी आरती दुबे जी, जी आरती जी आप पूछ सकती हैं। आरती जी आप क्वेश्चन पूछ सकती हैं। गौरव, आरती, जी अमित भैया आप पूछ लीजिए। नमस्ते सर। अमित बोलिए। थैंक यू सो मच। आप, मुझे पता है आप अपने बिजी शेड्यूल कितना बिजी हो, फिर भी आपने हमारे लिए टाइम निकाला, उसके लिए सबसे पहले तो थैंक मैं यू। भूल गया एंड था, सर लिटरली भूल गया आपसे मैं। आप 2 मिनट पहले मुझे अक्षित का मैसेज दिखा और फिर मैं दौड़ा, क्योंकि मैं जस्ट आया था कॉलेज से, वो फेस्ट वेस्ट का सब लफड़ा, तो मैं बाल बाल बच गया, नहीं तो ये सेशन छूटने वाला था मेरा। यस, हाँ अमित सवाल। सर थैंक यू आपका इस पूरे वंडरफुल लेक्चर के लिए। आपसे जब भी सुनता हूँ तो कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। सेम आज भी हुआ है हमारे साथ। सर मेरा क्वेश्चन शायद सब लोग रिलेट कर पाएंगे। जब हिस्ट्री पे हम रिसर्च करते हैं, किसी भी टॉपिक पे अगर रिसर्च करते हैं, अभी कुछ दिन पहले मैं गुरुकुल पे रिसर्च कर रहा था, तो एक चीज बहुत ज्यादा प्रॉब्लम ये क्रिएट होती है कि 2-3 आइडियाज होते हैं, डोमिनेंट आइडियाज, उनके ऊपर कुछ काम किया गया होता है हिस्टोरियंस के द्वारा, एंड सम प्राइमरी सोर्सेस होते हैं। तो बीइंग अंडरग्रेड स्टूडेंट बहुत ज्यादा प्राइमरी सोर्सेस पे तो हम एम्फसाइज नहीं कर पाते हैं, बट सेकेंडरी सोर्सेस को जब हम देखते हैं तो एक ही सोर्स के कम से कम 3-4 इंटरप्रिटेशन और एकदम अपोजिट भी सेम सोर्सेस के मिलते हैं। वो डिपेंड करता है कि वो ऑथर्स किस लॉबी या किस टीम से जुड़ रहे हैं, वो अपने हिसाब से उस आइडियाज को देते हैं। तो सर अगर हम इंडिपेंडेंटली इंडियन आइडियाज के लिए काम करना चाहते हैं तो उसमें हम किस तरीके से उन चीजों को इंक्लूड कर सकते हैं? एक्चुअली ये जो पूरा मुद्दा है, ये तो फैक्ट है कि एक ही चीज को अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट किया जाता है। अगर आप उदाहरण में दूं तो रोमिला थापर की सोमनाथ नाम की बुक है, आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, किसी ने पढ़ा है इसे? सोमनाथ सुना होगा। सोमनाथ बुक को आप पढ़े तो आपको दिखेगा कि जो मोहम्मद गजनवी का जो आक्रमण है सोमनाथ पे, गजनवी के आक्रमण को रोमिला थापर एब्सोल्युटली डिनाई करती है। और वो क्यों डिनाई करती है? वो बोलती है कि उस वक्त के कंटेम्पररी जैन टेक्स्ट में, गुजरात राजस्थान के किसी जैन टेक्स्ट में इस आक्रमण का उल्लेख नहीं आता। अब उस वक्त तो कोई इंटरनेट था नहीं कि गुजरात और राजस्थान में कहीं बैठे जैन मुनियों तक इमीडिएट कई बात चली जाए। चलो ठीक है, मान भी लेते कि इतनी बड़ी घटना है और बार बार आक्रमण हो रहे हैं, वो जा रहे हैं, लेकिन केवल जैन टेक्स्ट में उसका उल्लेख नहीं है करके पूरे आक्रमण को, अब वो पूरे आक्रमण को जस्टिफाई कौन कर रहा है या फिर बता कौन रहा है? उसके खुद के मोहम्मद गजनी के दरबारी इतिहासकार, दरबारी हिस्टोरियंस लिख रहे हैं। तो प्रॉब्लम इज, अगर कंटेम्पररी प्राइमरी सोर्सेस में वो बताया जा रहा है, जैसे संभाजी के केस को ले लीजिए, संभाजी के केस में भी यही नैरेटिव चला गया है कि औरंगजेब ने, मैं उदाहरण ही देता हूं आपको, वो अपने राम पुनियानी के पॉडकास्ट चलते हैं, ठीक है, किंतु परंतु नाम के राम पुनियानी के पॉडकास्ट आप सुनेंगे तो राम पुनियानी चिल्ला चिल्ला के थक गए कि औरंगजेब रिलीजियस फैनेटिज्म नहीं था उसमें, क्योंकि औरंगजेब ने 100 से ज्यादा मंदिरों को डोनेशन दे दिया। मैंने उनके हर पॉडकास्ट पे जाके लिखा, पुनियानी जी एक फरमान तो दिखा दीजिए, एक फरमान जो औरंगजेब ने दिया हो। ऐसे 2-3 कागज मिलते, तीनों के तीनों कागज 1950 के बाद बनाए गए नकली फरमान है, मैं प्रूव कर सकता हूं इसे। तो ये प्रॉब्लम तो आएगी कि एक चीज, अब क्या हो जाएगा, ये नकली फरमान उसमें डालने, ये अलीगढ़ वालों का बदमाशी है, सब मुझे पता है। इन्होंने ये नकली फरमान घुसाया और औरंगजेब को सेकुलर दिखाने की कोशिश की, क्योंकि हिंदू मुस्लिम यूनिटी में सबसे बड़ा रोड़ा जब वो दिख रहा था वो था औरंगजेब। तो औरंगजेब को बचाने के लिए ये फरमान डाले गए
ये राम पुनियानी जो रोज कोट कर रहे हैं। सवाल ये है कि उनका इंटरप्रिटेशन कुछ भी हो, अगर हमने अपने वे से सोचना है तो एक बात ध्यान में रखनी है अमित, सभी को बताता हूं, अपने वे से सोचना है इसका मतलब रिसोर्सेस को तोड़ मरोड़ कर अपने सिस्टम में नहीं घुसाना है, अपने सिस्टम में नहीं बिठाना है। जो प्राइमरी सोर्सेस और मेजरली जिसके आधार पर हम लिख रहे हैं वो सोर्सेस को अपने तरीके से इंटरप्रेट करके ही लिखना है। हमें अपनी आइडियोलॉजी के एंगल से लिखना है, इसका मतलब जानबूझकर उसे तरोड़, जैसे आपने अगर केदार फाल्के को सुना तो केदार फाल्के को पॉडकास्ट में पूछा गया कि औरंगजेब ने जो 3 सवाल पूछे संभाजी से, उसमें यह सवाल था क्या कि तुम्हारे कहां पे किले की चाबी और खजाने की चाबियां दे दो, मेरे कौन लोग तुम्हारे साथ जुड़े हुए हैं, गद्दार कौन है वो बता दो, और तीसरा धर्म परिवर्तन कर लो। केदार फाल्के ने बताया कोई भी प्राइमरी सोर्स धर्म परिवर्तन कर लो ये बोलता ही नहीं है। औरंगजेब ने नहीं बोला, इसलिए नहीं बोला कि औरंगजेब को उन्हें मारना ही था, धर्म परिवर्तन करके क्या करेगा, उसको तय था उसका कि संभाजी को मारना है। तो प्राइमरी सोर्सेस में नहीं है ना, तो फिर नहीं है। हम अपने आइडियोलॉजी को उसको एंगल देने के लिए जबरदस्ती उसमें घुसेड़ दें, जैसे फिल्म ने किया है, धर्म बदलो दिखाया, लेकिन कोई प्राइमरी सोर्सेस में धर्म बदलो वाला इशू नहीं है। तो मुद्दा यही है कि हम प्राइमरी सोर्सेस अपने आइडियोलॉजी के तरह से डिस्टॉर्ट ना करें। तो लेफ्ट वालों ने वही किया, जो है वही करना है। और इंटरप्रिटेशन 4 अलग अलग होंगे, लेकिन हमारा खुद का इंटरप्रिटेशन समझ में आता है ना क्या है, तो अपने इंटरप्रिटेशन से लिखें। यस, और कोई? जी सर, गौरव जी हमारे साथ हैं। Sir, here good evening, sir. Yeah. Sir, in the chat box, I raised one question that I actually faced when I was reading The Beautiful Tree by Dharampal in my undergraduate year. Okay. So my question is regarding the indigenous education system. If indigenous education is in nature, because in the writings of the K. Dharampal, I really found that K. Dharampal was actually glorifying and miscalculating. It's very sorry. If indigenous education was a reality in nature, then why there is a need and existence of Agrahara villages, especially in South India? There were the many Agrahara villages, and especially classes were conducted for the Brahmanas, and there was no special classes for the Dalitas. And my second question is, what kind of curriculum do the Dalitas study? As it is quite clear from the fact that occupation-based education was studied, so there is no concept of homogeneous and uniform educations. Because sir, my questions is emphasizing on a point is कि Dharampal or Parimala ma'am from the JNU CHS never mentions about what kind of curriculum do the Dalitas study. Yeah, there are the certain fact that Dalitas education was more have a higher figure than the Brahmanas, but there is no fact about the mention of that what kind of curriculum, what kind of study, what kind of classes you did attend. So my question is emphasizing on Yes, I got your question. I think something is missing in your reading. One thing is very clear. Dharampal's entire Beautiful Tree and Parimala Rao's work, as I have seen or read the entire book, that is about the primary education. Okay, I said discrimination was absolutely there, but in what sense? When it comes to the learning of Vedas, तो हायर एजुकेशन में जो इधर क्या बोलते थे पता नहीं मुझे नॉर्थ में, लेकिन बलूतेदारी बोलते, बार्टर सिस्टम जो है, बार्टर सिस्टम के कारण दे आर हैविंग देयर ओन बिजनेस ऑफ देयर ओन फैमिली. Everybody was not willing to go for the higher educations, but primary education syllabus or the curriculum is mentioned in the same book, and it was common for all. क्योंकि बहुत प्राइमरी चीजें उसमें जो कैलकुलेशंस है या फिर वो रामायण पढ़ा जा रहा है. हाँ, मक्ताब वगैरह जो है मुस्लिम बच्चों के लिए मक्ताब भी है, उनकी भी स्कूलें अलग चलती है. दो if you go through same book, you will find in primary education the curriculum is same for all. And maybe in different parts of India, for example, north, south, जो अलग अलग ये है सर्वेस है,
डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया चीजें अलग अलग, रेफर्ड बुक अलग अलग होती होंगी, एंड इट वाज आल्सो डिपेंड ऑन द एबिलिटी कैपेसिटी ऑफ दैट teacher also, because it is also seen in some places the ability, the competence of that teacher were not that competence they didn't have. तो वो कॉम्पिटेंस भी कुछ लोगों के पास नहीं होता था. तो दैट्स वाई इट वाज वेरी एज पर द ज्योग्राफी. तो अलग अलग एरिया में अलग अलग कॉम्पिटेंस के हिसाब से होता था. लेकिन द सर्वेज मोस्टली टॉकिंग अबाउट, इफ वी गो थ्रू द सिलेबस और द करिकुलम, द साउथ एंड द बंगाल जो पढ़ाया जा रहा है प्राइमरी एजुकेशन, दैट इज कॉमन फॉर ऑल. आई थिंक आई डोंट फाइंड अ पर्टिकुलर डिफरेंट करिकुलम फॉर, हाँ, when it goes to secondary school and higher education, the curriculum changes. फिर वेद और ये जो है वेद उपनिषद वेदांग है, ये केवल फिर ब्राह्मणों के लिए बच जाते हैं. ये है. यस सर एक क्वेश्चन तो मेरा भी था कि जब आप बता रहे थे बाइनरीज के बारे में, काफी सारी बाइनरीज हमारे वेस्ट से इन्फ्लुएंस्ड आई है, लाइक मैन एंड वुमेन करके आपने बहुत सारे एग्जांपल्स दिए थे, और शायद इसके और भी ज्यादा एग्जांपल्स होंगे. बट आई एम आस्किंग कि अगर ऐसी बाइनरीज एग्जिस्ट करती हैं तो फिर हाउ वी कैन हैव अ चेक अपॉन इट. Actually, now this is the war of narratives, my dear, today. And entire war has been fought on media, that may be social media, whatever. हम लोग देखते हैं कि कुछ पर्टिकुलर चीजें ऐसी होती है, घटना होती है, मॉब लिंचिंग किसी को हो जाती है तो पूरे वर्ल्ड में वो एक दिन में, एक रात में फैल जाती है बात. और कुछ चीजें ऐसी होती है, फॉर एग्जांपल मुर्शिदाबाद, तो उसकी चर्चा वर्ल्ड मीडिया में नहीं होती. तो बाइनरीज में देखने का वेस्ट का तरीका, और रहा सवाल चेक का, तो चेक यही है कि अगर हम एकेडेमिया में है तो एकेडेमिया में हम ज्यादा से ज्यादा सीरियस वर्क कितना प्रेजेंट कर पाते हैं, ये लॉन्ग टर्म में जाके उसका इम्पैक्ट दिखेगा. ये 2 दिन में होने वाला काम नहीं है, या फिर कोई डंडा लेके खड़ा और चेकमेट कर दिया कि साला ये नहीं, ऐसा नहीं होगा. ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है. फॉर एग्जांपल क्लैरिटी ऑफ आइडिया, ये 4 स्टेज प्रोसेस होती है. क्लैरिटी ऑफ आइडिया कि हमें करना क्या है. फॉर एग्जांपल हमने एक आइडिया पकड़ ली, आर्यन इन्वेजन थ्योरी, ठीक है. अब आर्यन इन्वेजन थ्योरी, क्लैरिटी ऑफ आइडिया रहने के बाद अब हमको इसका इम्पैक्ट पता है कि ये क्या होने वाला है, इसका इम्पैक्ट, क्योंकि एक डिवीजन खड़ा हो जाएगा समाज में. तो अब ये आर्यन इन्वेजन थ्योरी को करना क्या है, तो उसे हमने एकेडेमिया में, रिसर्च पेपर में, न्यूज पेपर में, हर जगह उसे लाना है. सेकंड स्टेज. थर्ड स्टेज में उसके ऊपर हमने सिंपोजियम्स, उसके ऊपर लेक्चर्स, उसके ऊपर कॉन्फ्रेंस, उसके ऊपर बुक, ये भी करना है थर्ड स्टेज में. और फोर्थ स्टेज में पॉपुलर मीडिया में लाना है, यानी उसे फिल्म में लाना है. उसे फिल्म है, नुक्कड़ है, नाटक है, ये थिएटर के थ्रू इसे समाज में ले जाना है. दिस इज द 4th स्टेज प्रोसेस फॉर बिल्डिंग अ नैरेटिव, एंड दिस वॉर ऑफ नैरेटिव इज गोइंग टू हैपन ऑलवेज. ये चलते ही रहेगा. अब ये काउंटर नैरेटिव के लिए हम कितना एकेडेमिया में, जो अनफॉर्चुनेटली हमारा प्रेजेंस नहीं है, वो कितना प्रेजेंस बढ़ाते हैं, उसके ऊपर ही चेकमेट है. हाँ, एक चीज है कि 15 साल 20 साल के पहले जो एक अवेयरनेस नहीं था, वो आज लोगों में अवेयरनेस है. लोग समझने लग गए कि ये झूठ नैरेटिव है, ये परोसा. क्योंकि न्यूज़पेपर और न्यूज एंकर्स जो पहले बोलते थे, सोशल मीडिया के पहले जो बोलते थे, वो पत्थर की लकीर होती थी. अगर बोल दिया रवीश कुमार ने कि ये ऐसा ऐसा है, तो दैट इज फाइनल. इंडियन एक्सप्रेस में किसी ने लिख दिया, दैट इज फाइनल. लेकिन आज लोग काउंटर चेक करते हैं. रवीश कुमार की न्यूज है, नैरेटिव के बारे में बताता हूँ, एग्जांपल खत्म करता हूँ. रवीश कुमार की कोरोना में सबसे पहली न्यूज थी कि हार्वर्ड का सर्वे किया है हार्वर्ड ने भारत में, और हार्वर्ड की रिपोर्ट भयावह है. और हार्वर्ड की रिपोर्ट यह है कि भारत में 5 करोड़ लोग कोरोना से मरेंगे. लोग हार्वर्ड से कांटेक्ट रखने वाले 100 लोग, 1000 लोग मिल जाते. इमीडिएट हार्वर्ड से कांटेक्ट किया गया, टैग किया गया उनके हैंडल से, ट्विटर हैंडल को, और पूछा गया कि ये आपका ऐसा ऐसा सर्वे है क्या, जो 5 करोड़ की आप बात कर रहे हैं मरने की. हार्वर्ड ने कहा ऐसा हमारा कोई सर्वे नहीं, ये फेक रिपोर्ट है. उसके लिए रवीश ने माफी नहीं मांगी कभी, लेकिन सोशल मीडिया ने उसकी पोल खोली. तो नैरेटिव को, काउंटर नैरेटिव का तरीका यही है जी. हम बट जब देखते हैं कि जब हम बात करते हैं हिस्ट्री के बारे में, तो हमें ये भी देखने को मिलता है फिर तभी आपका माइक ऑफ है.
मेरा माइक ऑन है। सॉरी सर, वो मेरा माइक ऑफ था। आई वाज आस्किंग वन मोर थिंग कि जब हम बात करते हैं हिस्ट्री के बारे में तो हम लोग ये चीज़ भी देखते हैं कि कहीं ना कहीं जो हिस्ट्री हमें टेक्स्ट में मिलती है और जो हिस्ट्री पॉपुलरली एग्जिस्ट करती है, उन दोनों में हमें बहुत सारे डिफरेंस देखने को मिलता है। तो वी गॉट कंफ्यूज कि क्या सही है, क्या उन्होंने इतना आर्टिकल में जो लिखा हुआ है वो सब कुछ सही लिखा हुआ है। बिकॉज हम लोग जो बचपन से सुनते हैं कहानियां है हिस्ट्री, उसके बारे में वो सब चीज़ें मतलब कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट करती हैं कि लाइक वो चीज़ गलत है या फिर वो चीज़ सही है, उसका वही नहीं समझ में आ पाता। इसका जवाब पढ़ने से ही मिलेगा। आपका नाम क्या है? कर्तव्य। कर्तव्य। इसका जवाब पढ़ने से, पढ़ते पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा कि ये गलत है, ये सही है। पढ़ने से इसका जवाब मिलेगा। ऐसी कोई बटन नहीं है या फिर ऐसे कोई मशीन नहीं है कि पेपर डाला पता चला ये सही है कि गलत है। हम पढ़ते जाएंगे। तो एक डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री में प्रोफेसर अमर जीवा है, उनके सामने ऐसे 200 किताबों की यादी रख दो, वो 200 किताब में से बता देती ये कचरा है, ये ठीक है, वो देख के बता देते। हर स्कॉलर पता होता है। तो ये पढ़ते पढ़ते एक स्टेज आ जाती है कि हमें समझ में आता है कि ये गलत लिखा है या फिर ये नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है। वो पढ़ने से आएगा। Along with it, I would like to call our founder of Dakshi, Ashik Soya, to give a thank you note. अर्चित भाई, अर्चित भाई। नमस्ते सर, नमस्ते सभी को। एज यू ऑल नो सर बहुत बिजी शेड्यूल से अपना टाइम निकाल के आए थे। मैं अभी सर थोड़ी देर पहले रामजस में ही था और वो कुछ कवि सम्मेलन वगैरह चल रहा था तो मैं गया हुआ था थोड़ी वहाँ पे देर था के लिए। मैं। हाँ हाँ। हाँ तो आप, हाँ मैंने देखा, मैंने कहा सर इतना बिजी हो रखे हैं, अभी फेस्ट वगैरह का भी आई गेस कल कुछ हुआ था, तो इतना सारा बिजी शेड्यूल के बाद भी डेफिनेटली आपने हमारे लिए समय, और शायद कल आपकी फ्लाइट भी है तो आपको कल हाँ, भी जाना कल है जाना और वो कल। या तो इट्स अ वेरी बिजी शेड्यूल ऑफ सर, और उसके बाद भी सर आपने टाइम निकाला तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस भी नरेट ऑफ नरेटिव्स में कहा, हम दाक्षी में भी हमेशा ये चीज बताते रहते हैं कि वॉर ऑफ नरेटिव्स है, अगर आप अपना नरेटिव नहीं रखोगे तो दूसरा नरेटिव स्टैब्लिश हो जाएगा। और वही बिल्कुल। सारी चीज है कि ये सारे बच्चे बहुत अच्छे से लगे हुए हैं अपने कार्य में, और आज आपने उनका मार्गदर्शन किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आगे भी हमें आपका ऐसे ही मार्गदर्शन मिलता रहेगा। ठीक ऐसे है, ही लोग। ये मैं 24/7 अवेलेबल हूँ। जी सर, थैंक यू सो मच सर। और सर रामजस के भी हमारे पास कुछ बच्चे जुड़े हुए हैं, रामजस की टीम से भी, तो आप लोग भी कभी भी सर के पास जा सकते हैं, कोई भी समस्या हो आपको। मयंक हैं, यश हैं, भूपेंद्र हैं, और भी काफी सारे बच्चे हैं यहाँ पर। तो आप लोगों को कभी भी कोई भी समस्या हो तो आप कॉलेज में सर से किसी भी प्रकार से जरूर मिलें जाके सर से। और थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सर, आपने हमें श्योर किया आप 24/7 हमारे लिए तत्पर हैं। और इसके साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि हमारे दाक्षी का प्रत्येक सत्र वंदे मातरम के साथ समाप्त किया जाता है। तो इसके लिए मैं बुलाना चाहूँगा भूपेंद्र जी को कि वो वंदे मातरम का गायन करें। वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् सुजलां सुफलां मलयज शीतलां शस्यश्यामलां मातरं वन्दे मातरम् शुभ्रजोत्सना पुलकितयामिनीम् पुलकुसुमित द्रुमदर्शोभिः सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् वन्दे मातरम्। जय हिंद, जय दाक्षी। आप सभी का इस आज के सेशन में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ अब हम अपना आज का सत्र समाप्त करते हैं। आगे भी अभी 2 दिन और रिसर्च वर्कशॉप रह गई है, तो आगे और भी ज़्यादा ज्ञान का भंडार में मिलेगा। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय दाक्षी। थैंक यू।
Thank you so much.